Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Tick, write the correct answer. Number 1. Which of these is a natural disaster? इनमें से नेचुरल डिजास्टर कौन सा है? नंबर 1 ए अर्थक्वेक, नंबर बी ऑयल स्पिल, नंबर सी स्टैम्पेड. आंसर इज ए earthquake. Number 2. During the drought, there is a shortage of. तो ड्रॉ के समय किसकी शॉर्टेज होती है? नंबर ए फायर, बी ऑयल, सी वाटर. आंसर इज सी वाटर. नंबर 3. It is a great wave in the sea caused by a earthquake. earthquake से सी में बड़ी बड़ी लहरें आती है, उठती है. तो कब? ए earthquake, बी सुनामी, सी साइक्लोन. तो आंसर है बी साइक्लोन. जब समुद्र के नीचे जो ज़मीन होती है उसमें earthquake आता है, तो ज़मीन के ऊपर जो पानी होता है उसमें बड़ी बड़ी लहरें उठती है, उसको हम कहते हैं सुनामी. नंबर 4. A lot of earthquake in India occur in the dash ranges. तो इंडिया में ज़्यादा earthquake कहाँ आते हैं? नंबर 1 ए शिवालिक, बी सापुतारा, सी हिमालय. आंसर इज सी हिमालयन. नंबर 5. It is a storm caused by winds rotating at a high speed in circular motion. तो विंड बहुत ज़ोर ज़ोर से रोटेट यानी गोल गोल घूमती हुई हाई स्पीड में आगे बढ़ती है, उसको क्या कहते हैं? ए साइक्लोन, बी earthquake, सी ड्रॉग. आंसर इज ए cyclone. Exercise B. Fill in the blanks. Number 1. A dash is a major accident which causes a great loss of life and property. तो किसमें बहुत ही लाइफ और प्रॉपर्टी का नुकसान होता है? आंसर इज डिजास्टर. A disaster is a major accident which causes a great loss of life and property. Number 2. The dash is used to measure the strength of earthquake. earthquake को हम किस में मेज़र कर सकते हैं? आंसर है Richter scale. The Richter scale is used to measure the strength of earthquake. Number 3. Dash is a series of waves in a water body caused by the displacement of large volume of water. तो एक जगह से दूसरी जगह पे जब वाटर बॉडीज़ है उसकी वेव्स है वो पहुंच जाती है. डिस्प्लेसमेंट एक जगह से दूसरी जगह पे जाती है. कब? आंसर इज सुनामी. Tsunami is a series of waves in a water body caused by the displacement of large volume of water. Number 4. The dash is an explosion that occurs as a result of the rapid release of energy from high-speed nuclear reaction. तो आंसर है न्यूक्लियर एक्सप्लोशन. तो क्या होता है जिससे बहुत ही रैपिड यानी कि बहुत जल्द स्पीड से रिलीज़ करते हैं एनर्जी को
और उसका न्यूक्लियर रिएक्शन भी आता है। तो आंसर है न्यूक्लियर एक्सप्लोशन में, इस तरह से होता है। नंबर 5, when soil of a particular area dries up and crops get damaged due to lack of rainfall, it is called dash। तो ड्राई हो जाती है लैंड और क्रॉप्स भी डैमेज हो जाते हैं और बारिश की कमी होती है, तो उसको क्या कहते हैं? आंसर इज ड्रॉग। When soil of particular area dries up and crop get damaged due to lack of rainfall, it is called drought. Match the following. Number 1, cyclone. Answer, sea storm caused due to high speed winds. Number 2, fire, forest fire. Uncontrolled fire in an area of vegetation. Number 3, oil spill. Release of liquid petroleum in marine area. Number 4, war. State of conflicts between societies. Number 5, tsunamis. Series of waves in a water body. Answer the following questions. Number 1, what do you understand by a disaster? डिजास्टर से आप क्या समझते हैं? आंसर, ए डिजास्टर इज ए सीरियस डिस्ट्रप्शन ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ ए सोसाइटी involving widespread human, materials, economic और environmental losses। तो डिजास्टर में जो है ह्यूमन की, मटेरियल यानी चीज़ों की, इकोनॉमिकली यानी कि पैसों की दृष्टि से, और साथ साथ में एनवायरनमेंट भी बहुत ही नुकसान होता है, एनवायरनमेंट में बहुत नुकसान होता है, उसको हम कहते हैं डिजास्टर, जो हमारे फंक्शनिंग में डिस्टर्बेंस लाता है। ओके, नंबर 2, व्हाट हैपन व्हेन अर्थक्वेक occurs? हाउ इज इट मेजर्ड? अर्थक्वेक में क्या होता है और उसको हम कैसे मेजर करते हैं? आंसर, ए मेजर अर्थक्वेक कॉज ए लॉट ऑफ डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। जैसे कि आपने देखा कि डिजास्टर में क्या होता है, लाइफ यानी लोगों की जान और प्रॉपर्टी को नुकसान होता है। उसको हम कैसे मेज़र करते हैं? द रेक्टर स्केल इज़ यूज्ड टू मेज़र द अर्थक्वेक। तो रेक्टर स्केल से हम अर्थक्वेक को मेज़र कर सकते हैं कि वो कितनी तीव्रता, कितनी स्पीड से आया है। ओके, नंबर 3, व्हाई डज एन अर्थक्वेक अकर्स? अर्थक्वेक क्यों आता है? आंसर, earthquake occurs when there is a sudden movement in the earth's crust। तो जो अर्थ की लेयर आपने देखी डायग्राम में, अलग अलग 3 लेयर, उस लेयर में सडन अचानक मूवमेंट होने लगता है और वो मूवमेंट जो है ऊपर तक, ऊपर की सरफेस तक जब पहुंच जाता है तो सारी चीज़ें हिलने लगती है और डिस्ट्रॉय होने लगती है, उसको हम कहते हैं अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक आने का अंदर की मूवमेंट है, उसके कारण अर्थक्वेक आता है। नंबर 4, व्हाट आर मैन मेड डिजास्टर? गिव एग्जाम्पल। अब 2 तरह के जो डिजास्टर हैं उनमें से मैन मेड डिजास्टर्स क्या होता है और उसके एग्जाम्पल बताने हैं। आंसर, a man-made disaster caused by negligence of human action is called man-made disaster। मतलब कि यहाँ पे ह्यूमन बींग्स की
जो है निग्लिजेंसी यानी कि बेदरकारी, बेध्यान के कारण ये मैनमेड डिजास्टर या कभी कभी इंटेंशनली जानबूझकर भी ये डिजास्टर्स ये करते हैं। जैसे कि कोई देश है दूसरे देश के ऊपर बम डालना, तो ये इंटेंसली होता है डिजास्टर। ओके, तो या तो जानबूझ के करते हैं या बेध्यान हो जाते हैं, तब मैन मेड डिजास्टर कॉज यानी कि होते हैं। तो उसके एग्जाम्पल हैं फॉरेस्ट फायर, फेमाइन, वार, ऑयल स्पिल, एक्सेट्रा। ओके, नंबर 5, व्हाट precaution can we take during natural disaster। और जो दूसरा तरीका है नेचुरल यानी कि कुदरती डिजास्टर यानी कि आपत्ति जब आती है, नेचुरली कोई आपत्ति आती है, जैसे बहुत अधिक बारिश होना, अर्थक्वेक होना, फ्लड होना, सुनामी आना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो उसमें हमें कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। प्रिकॉशन यानी कौन सी बातें का ध्यान रखना चाहिए। ड्यूरिंग डिजास्टर वी शुड लिसन द रेडियो और वॉच टेलीविज़न फॉर वार्निंग। ओके, तो हमें रेडियो और टेलीविज़न को बराबर ध्यान से सुनते रहना चाहिए। कीप इम्पोर्टेंट फ़ोन नंबर हैंडी, और हमारे पास इम्पोर्टेंट फ़ोन नंबर होने चाहिए ताकि हम फ़ोन करके अपनी मदद के लिए बुला सकें। नंबर 3, वी शुड नॉट गेट पैनिक, हमें डरना चाहिए नहीं। तो इस तरह से जब नेचुरल डिजास्टर आए तो हमें इन बातों का ध्यान रखना। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ए ऑयल स्पिल। तो ऑयल स्पिल क्या होता है? एन ऑयल स्पिल is the release of liquid petroleum into the environment, especially marine area, due to human activity and is a form of pollution। तो इस तरह से ऑयल स्पिल यानी कि जहाँ पे पानी होता है, बराबर, तो जहाँ पे ये पानी होता है वहाँ पर उस एरिया में जो पेट्रोलियम है उसको रिलीज़ करते हैं, और फिर वो रिलीज़ करने के कारण उसके अंदर जो भी एनिमल्स या जो उसके जीव जंतु होते हैं पानी के समुंदर में या नदी में, तो उनको नुकसान होता है और वो मर जाते हैं। इससे ये एक तरह का पॉल्यूशन भी कहा जा सकता है। तो ऑयल स्पिल यानी कि समुंदर या नदियों में इस तरह का ये ऑयल स्पिल नहीं करना चाहिए। ओके, नंबर 2 कौन सा है? न्यूक्लियर एक्सप्लोशन। तो न्यूक्लियर एक्सप्लोशन यानी क्या? ए न्यूक्लियर एक्सप्लोशन इज एन एक्सप्लोशन that occurs as a result of the rapid release of energy from high-speed nuclear reaction. Nuclear explosion produce radiation and radioactivity debris। तो यहाँ पे न्यूक्लियर एक्सप्लोशन मतलब क्या होता है कि जो परमाणु होते हैं उसका विस्फोट करते हैं, और वो एकदम रैपिड रिलीज़ होता है, बहुत ही स्पीड से इस एनर्जी का, परमाणु शक्ति का को रिलीज़ करते हैं, बहुत हाई स्पीड के साथ, हाई एनर्जी के साथ। और इससे क्या होता है कि जो है रेडियो एक्टिव और रेडिएशन यानी विकिरण एकदम लाइटनिंग होती है। ओके, और इतना ज़ोर से होने के कारण इतना जो धुआं और क्लाउड के जैसा हो जाता है कि एक तरह से क्लाउड नहीं होते हुए भी वो क्लाउड के जैसे दिखता है। तो इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर एक्सप्लोजन।